हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ और आज का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे। और आज के द हिंदू एनालिसिस में अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। हालांकि आज के पेपर में एडिटोरियल्स थे, बट इन दी फर्स्ट 5 to 6 पेजेस देयर वर वेरी लेस न्यूज़ रेलिवेंट टू यूपीएससी। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दिस न्यूज़ जिसका मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट दिया हुआ है अबाउट दी मराठा एजिटेशन जो अभी चल रहा है इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, so that you take an example for yourself to quote in the arguments in the favor and opposition in the favor and the arguments against the concept of reservation. ठीक है, so that's something which you can do at your own. You can just quote this Manoj Jarange Patil, who was there on the hunger strike for ensuring or for capitalizing quota for the Maratha community. ठीक है, then talking about this editorial liquidating the hand pump, this is again a case study, or this you can directly highlight as an anecdote इन योर essay. अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम ऐसे में यूज कर सकते हैं. चेंजिंग द वेज द पोस्टमैन नॉक्स. yes, there are three bills, two bills actually. One is about the postal amendment bill, which was there introduced in 2023, and another women's reservation bill which began its origin in 2008 when the amendment bill was introduced. 108th constitutional amendment bill was introduced at that point of time, and till this time we haven't been able to secure a 33% reservation for women at the parliament level. टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देखेंगे हम कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस किस सेक्टर में ये काम करती है, और इससे रिलेवेंट थोड़ी और टर्म्स भी देखेंगे. International relations में there is a article about again the climate diplomacy and the energy diplomacy, or you can say the renewable energy, a new front which is opening up in the international relations. Supreme Court has joined a national judicial data grid, and we will see that how much important is going to be and what are the key components of NJDG. ठीक है, then there is again one more bill which we will talk about, which mandates a digital registration and which mandates the digital certificates which we earlier used to get as date of birth certificates and the death certificates. So we will get now these children who are born, who will be born after 1st of the October, will have mandatory will have to register themselves mandatorily for uh, on the central government's portal for their birth and death certificates, which will be then used for Aadhaar, ration card, and all the other documents, whether that is admission in a college or applying for a government job. Those certificates will be then used. And there are two more articles about the economy section, or you can say the wholesale price and the subsidy scheme, which is unveiled by the state of Odisha. So, beginning with the discussion, we have started our foundation batches in Patna and Delhi, both the centers. Admissions are open. You need to secure your seat as soon as possible because registrations are closing soon, as we have to start the batch from 20th of September in Delhi. ठीक है, तो 20 सितंबर को जो बैच स्टार्ट होगा दिल्ली में, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले ही, और रजिस्ट्रेशन होगा तभी जाके आपको वहाँ पे आपको बैच में एक्सेस मिल जाएगा. ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर आपको एडमिशन या सीट सिक्योर कराना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा. तो बिकॉज हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स होती है, और हमारे फाउंडेशन कोर्स के कुछ यूनिक फीचर्स अगर आपको जानने हो तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड. लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन. एंड द डिस्कशन on every day starts with a UPSC previous year question, and it ends with a UPSC previous year question only. We discuss these questions in two perspectives. One is the fundamental knowledge which we require to solve a simple MCQ or simple question in UPSC, and a logic which is there
व्हेन वी रीड बिटवीन द लाइंस, और जब भी हम रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं तो हमें वो लॉजिक दिख जाता है। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। This question talks about that the Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 16(4) affirmative action of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of administration। ठीक है, अभी देखना यहाँ पे ये कंफ्यूज कैसे करता है ये इंसान को। सेकंड स्टेटमेंट है, The Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration। सिंपल बेट, जो चीज आपको आसान लगे, जहां से आपको लगे कि आप यहां से ज्यादा कमा सकते हो और ये काम आसान है, तो आपका दिमाग उस काम के लिए ज्यादा मोटिवेट होगा जो काम आपको आसान लगेगा। तो दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी इजी, है ना, टू अंडरस्टैंड, एंड दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी इजी टू जस्ट मार्क इट एज करेक्ट। क्यों? बिकॉज दिस इज ए शॉर्ट स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को लंबा बनाया है। क्यों लंबा बनाया है? ताकि इसकी डिफिकल्टी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि ये ब्रेन को एक्सेप्ट ही ना हो कि तुम इस पे इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करोगे, इतने बड़े स्टेटमेंट पे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा टाइम चला जाएगा, दूसरा क्वेश्चन फंस जाएगा। एंड देन what actually we do is we misread the statement. How we will misread the statement? We will just start with this Article 164 of the Constitution of India. This Article 16(4) of the Constitution will be limited by Article 335। और जब हम इतना पढ़ेंगे तो हमें लगेगा यार ये तो रेस्ट्रिक्शन है 16(4) की, रेस्ट्रिक्शन 335 में है, ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कहीं पे। बट हम इस चीज को इग्नोर करेंगे दैट कि ये चीजें बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज will be subject to Article 335 for the maintenance of efficiency and administration। और अगर आपको याद हो दिस केस ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, जितने भी केसेस आए हैं रिजर्वेशन के, इन विच सुप्रीम कोर्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर मेंटेनिंग द efficiency in the administration, and then also limiting the reservation less than 50% of the total quota, है ना। तो यू विल रिमेंबर दैट यस देयर वेयर केसेस जिनको हमें देखना था, और ये केसेस हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डेफिनेशन दिया हो, ठीक है। But when we talk about the statement 2, it says Article 335 of the Constitution defines the term efficiency of administration। So अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो तो दिस efficiency of administration अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखा था पहले से ही, then why will Supreme Court intervene and start defining this Article 335 with respect to Article 16(4)? है ना। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट तो नहीं हो सकते, है ना, इधर वन इज करेक्ट और टू इज करेक्ट। तो सिंपली आपको ये देखना है दैट दिस डिफाइन, पिछले प्रीवियस बहुत सारे पेपर्स में दिस टर्म हैज बीन यूज्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस, और दिस आर्टिकल डिफाइंस दिस, है ना, वेदर दैट इज जुडिशियल रिव्यू, वेदर दैट इज जुडिशियल ओवररीच, वेदर दैट इज लिबर्टी। तो वो बहुत सारे आर्टिकल्स में ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी का एक क्लीशे बन गया है अब, ठीक है, वेदर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस और नॉट। तो ये स्टेटमेंट मैक्सिमम ऑफ द केसेस में गलत होता है, एंड दिस इज ट्रूएस्ट इन इट्स नेचर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। ये स्टेटमेंट भी गलत था, तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 वाज करेक्ट एंड 2 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द फंडामेंटल्स बिहाइंड इट, go through Indra Sahani judgment and Nagaraj judgment so that you get more clarification on the reservation concept। लिक्विडेटिंग दी हैंड पंप्स, दिस इज ए ग्राउंड सर्वे, और जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि स्पॉटलाइट या ग्राउंड जीरो जो पेज आता है हिंदू का, इसको पढ़ा करें, इसको समझा करें, ताकि आपका एक बेसिक ब्यूरोक्रेटिक पर्सपेक्टिव बन जाए कि अगर आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स आती है ग्राउंड लेवल पे, जब आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, और उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो इन दैट सिनारियो दिस संध्या कुमारी, जो कि 18 साल की लड़की है, जो शिवहर विलेज में रहती है, महोबा डिस्ट्रिक्ट है इसका, और उत्तर प्रदेश में रहती है, यूपी में, ठीक है, दिल्ली से सटा हुआ शहर, दिस दिल्ली से लगा हुआ स्टेट यूपी, नाउ एंजॉयज द कन्वीनियंस ऑफ ए टैप दैट प्रोवाइड्स हर विद फ्री वाटर अनलाइक द डेज व्हेन शी हैड टू फेच वाटर मैनुअली।
ठीक है, तो दिस विल बी योर एनेक्डोट। और ऐसे ही स्टार्ट करना है अपना ऐसे। जब आप बोलते हो ना कि हम एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे ऐसे, और फिर हम एनेक्डोट लिख देते हैं 2-4 पेज का, तो वो नहीं करना है, ये होता है एनेक्डोट। ठीक है। और फिर हम लिखते हैं कि अब जो हर घर जल इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे कुमारी के गांव में कितना चेंज आया है, शिवहर विलेज में कितना चेंज आया है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो ये लड़की है संध्या कुमारी, इसको अब टाइम मिल रहा है ताकि ये पढ़ पाए, क्योंकि इसके घर में पानी डेली खुद ही आ जाता है, टैप वाटर, है ना। हाउएवर, इसी गांव में कुछ और लोगों को भी देखा गया जो अर्लियर, मतलब अगर हम पहले की बात करें तो अर्लियर विलेजेस में ये प्रॉब्लम था दैट ग्राउंड वाटर से ही काम चलाना पड़ता था, कुएं से काम चलाना पड़ता था, पर्शियन व्हील आता था। तो वो सब चीजें पहले थी फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर फेच करने के लिए फ्रॉम द वेल्स, है ना। बट with the advent of this, with the more push towards the tap water through Har Ghar Jal initiative, Government of India has provided this facility to the rural areas also. However, there is a challenge with respect to this, that कि जो ये लोग हैं, this transition to tap water is not accepted, it is seen as less convenient, है ना। बिकॉज हैंड पंप्स जो है उनके पानी का टेस्ट अलग है, और इस टैप वाटर का जो ट्रस्ट लेवल है कि आप नल से सीधा पानी निकाल के पी लो, वो चीज अभी तक बिल्ड नहीं हुई है, वो ट्रस्ट का लेवल नहीं आया है कि ये पानी साफ भी होगा, पिया भी जा सकता है, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है ना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो जहाँ पे केमिकल्स यूज होते थे, तो यूज होते हैं। तो इसलिए ये दो चीजें हैं जो यहाँ पे इस एडिटोरियल ने हाईलाइट की थी। ठीक है, कि ये हैंड पंप्स का सिग्निफिकेंस क्या था रूरल एरियाज में, और अब टैप वाटर आने के बाद कितना चेंज आया है, और उस चेंज की वजह से संध्या कुमारी पे कितना चेंज आया है। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी राइट एन एनेक्डोट, और हम ऐसे ही एनेक्डोट्स को अपने ऐसे में लिखेंगे। ठीक है, यू शुड गो थ्रू दिस स्कीम अगर जल, टॉकिंग अबाउट disentangling 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 the 2030 global renewable energy targets. Disentangling the 2030 global energy targets and talking about the targets जो हमने 2030 के लिए सेट किए हैं, चाहे वो 500 गीगावाट्स का मार्क हो, when we talk about China and India have to do much more to achieve this 500 gigawatt target by 2030. And when we have to talk about the net zero emissions target of India by 2070, so we also need to delve into this thing कि जो टारगेट्स 2030 तक के हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उन टारगेट्स पे कितना काम हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक इस चीज में आगे बढ़ने के लिए। तो ऑथर जो यहाँ पे हैं, अगर आप देखो तो दे आर फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु, एंड MS स्वामीनाथन, who is a fellow in the research foundation of Chennai. They talk about the COP28 जो अभी होने वाली है कहाँ पे, नवंबर 30 से लेके दिसंबर 12 तक दुबई में होने वाली है COP28, which will take care and which will propose a global target to triple the renewable energy capacity from the current levels by 2030। तो जो हमारी अभी की करंट लेवल है रिन्यूएबल एनर्जी की, उसको 3 टाइम्स बढ़ाना है 2030 तक पहुंचते पहुंचते। दिस टारगेट वॉज फीचर्ड अर्लियर इन द G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो आया, दिल्ली डिक्लेरेशन, एज एन एस्पायरेशनल गोल। और अब इस टारगेट पे ज्यादा काम होगा, बट इस टारगेट को अचीव करने के लिए देयर आर सम इश्यूज। इश्यूज क्या है? तो 2021 तक जो हमारी इंस्टॉल्ड ग्लोबल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, दैट हैज रीच्ड ओनली 3026 गीगावाट्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूटिंग अराउंड 39% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है उसका 39% ही है रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्स होता। हाउएवर इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, renewable energy accounts for around
28% ओनली। तो इसको ट्रिपल करने का मतलब क्या है? अराउंड 88% और 86% के आसपास हमें इसको लेके जाना है ना। सो टू ट्रिपल इट द टारगेट वुड बी अराउंड 9000 गीगावाट्स, है ना, exceeding the total installed capacity from all the sources approximately by 600 गीगावाट्स का हमें और जरूरत पड़ेगा ताकि हम इस टारगेट को अचीव कर पाए। However, अगर हम देखें तो the composition of renewable energy, majority of it is expected to come from solar and wind energy, and this requires construction of hydro plants also। ठीक है, जहां से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और हाइड्रो पावर जनरेट करेंगे। बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट कि ट्रिपल करना है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को, तो इसको जनरेट करने के लिए अबाउट 13,000 ट्रिलियन वॉट्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम RES अलोन इज देयर। ठीक है, तो देयर आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अलोन विच आर इक्विवेलेंट टू 38% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बट इसके बाद अगर आप देखो तो देयर आर रीजनल डिफरेंसेस। चाइना, इंडिया, दे आर एक्सपीरियंसिंग हायर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ than the European Union and United States. Plus, we have also compliance to adhere to phasing out of the fossil fuels, जिसमें achieving this tripling target would be difficult for us also, for the developing countries also, है ना। तो this sharing of tripling target is an issue there. However, with the proper funding and all, we can achieve this. So in that scenario, what steps have governments taken? तो first of all, where from these targets emerge, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट ने यह हाईलाइट किया था दैट 80% जो पावर जनरेशन हो रहा है कहाँ पे? सब सहारन एरियाज में, है ना। सब सहारन अफ्रीका में जो 80% पावर जनरेशन हो रहा है, दिस वुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ओनली बाय 2030, 2030 तक, एज कंपेयर टू 70% फॉर यूरोपियन यूनियन। तो देर इज अ मोर शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी in sub-Saharan Africa. However, when we talk about capacity versus demand, so the challenge lies in projecting the installed capacity without accounting for energy demand growth, and renewable energy targets should ideally be relative rather than absolute. Absolute. क्यों होगा ऐसा और ये क्या कहना चाहता है ये स्टेटमेंट? तो ये कहना ये चाहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं ना इसकी रिन्यूएबल एनर्जी की, तो हम बस ये बात कर रहे हैं कि कितना हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। हम ये बात नहीं कर रहे हैं या ये यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है। एंड दैट इज द की चैलेंज। ठीक है, वी शुड बी डीलिंग विद द टू थिंग्स इन रिलेटिव टर्म्स, है ना। हमें ये दोनों चीजों को ध्यान में रख के देखना होगा कि कैपेसिटी कितनी है और डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है। रिसोर्सेज का चैलेंज है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। For the supply and stability, we have this crunch of resources also. We have financial hurdles also. And in order to scale up the renewable energy, है ना, in order to scale up the renewable energy capacity to such levels necessitate financial resources. So there is the funding gap and the funding is required for these sectors, and minimal annual target of climate finance is around $100 billion। ठीक है, तो इतनी फंडिंग होगी तभी जाके इतना शिफ्ट हो पाएगा। तो दीज आर द स्टेप्स विच हैव बीन टेकन एंड दीज आर द challenges which are there ahead of this COP28 summit, which is about to be held in Dubai in the next month. Changing the ways the postman knocks. If you remember, this author is currently talking about two things। ठीक है, कि जो नया पोस्ट ऑफिस बिल आया है, ठीक है, which talks about this new post office bill 2023, which is aimed to amend the India Post Act of 1998। इस बिल से होगा क्या? ही इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे ये बिल एक फ्यूचरिस्टिक पोस्टल डिलीवरी सिस्टम लेके आएगी, एंड इस बिल ने क्या चेंजेस लेके आई है। इन चेंजेस के बारे में ये ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं और ये बोलते हैं कि अब जो है जो पुराना पोस्टल सिस्टम था वो चेंज होगा और नए पोस्टल सिस्टम में हम वी विल सी न्यू चेंजेस हैपनिंग।
ठीक है. So the new post office bill which was introduced in Rajya Sabha aims to replace this act, and this act is focused on mail services, while the new bill acknowledges the expansion of post offices. ठीक है. पहली चीज है एक्सपेंशन ऑफ पोस्ट ऑफिसेज. जैसे हमने, आपको याद होगा तो पोस्टल पेमेंट बैंक्स हमने देखे थे लास्ट टाइम. तो देर आर मोर सर्विसेज एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिसेज अभी अंजाम दे रहे हैं. इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, तो इसीलिए द कंट्रोल इज नाउ डिक्रीज्ड. ठीक है. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो था फ्रॉम द पार्लियामेंट, एवरीथिंग हैज टू बी, जो है वहां से परमिशन आना था, वहां पे बिल पास होना था, तभी जाके चीजें होती. तो दिस कंट्रोल इज नाउ ईज्ड डाउन. ठीक है. और इससे क्या होगा? पोस्ट ऑफिस की ग्रोथ होगी, पोस्टल सिस्टम की ग्रोथ होगी, बिकॉज वी हैव अराउंड मोर देन 1,50,000 पोस्ट ऑफिस करंटली ऑपरेटिंग, है ना. तो इसलिए the redressal and the addressing of the standards, central government is authorized to establish the standards for addressing the items, addresses, identifiers and postal codes. और central government may pave way for now क्या, जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स. अब ये जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जो हम लोकेशन में यूज करते हैं, अगर आपको पता हो तो, जब भी हम गूगल मैप यूज करते हैं तो जो जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो बेसिक समझ में आ रहा होगा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को हम यूज कर सकते हैं, और हम जीपीएस को यूज करके पार्सल्स वगैरह को ट्रैक करें, बिल्स को ट्रैक करें, लेटर्स को ट्रैक करें. तो दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू change. And now this bill will also modernize the legal framework to govern the post offices. कैसे करेंगी? This will enhance and this will change the role and services of postal offices. कि earlier post office was just to deliver letters, but now yes, it has changed. There are provisions कि ये अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको मेंटेन करेगा खुद से, है ना. देयर विल बी ऑटोनॉमी इन प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी. देयर विल बी ऑटोनॉमी इन ट्रांसफरिंग दी लेटर्स, पार्सल्स, उन सब चीजों में ऑटोनॉमी होगी. और yes, there are security measures which the central government will reserve for itself, but other than that, there will be more autonomy to the body, to the whole structure of post offices in India, and these services will be expanded, and this will lead the post offices towards a more competitive market, जहाँ पे कंपटीशन है और बाकी सारे प्लेयर्स, जब से कुरियर सर्विसेज आई है तब से, it will now be a more efficient competitor with respect to all of the other competitors. इसीलिए this exclusion of this privilege, जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज एक प्रोविजन था इन द पोस्टल एक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट एक्ट ऑफ 1898, तो दिस provision is also now removed. And if we see that the personal communication जो अब हम WhatsApp वगैरह से करते हैं, this earlier used to be through the through the writing down of letters and then sending the letters. So this has already changed, so should be the change in post offices. Talking about the women's reservation bill, this BJP leader, who is also, she is holding, I guess, the Mahila Morcha, and she is the chief of the Mahila Morcha of Bharatiya Janata Party, and she is talking about the hopes which she has on women reservation bill. What is women reservation bill? Actually, there was a political leader recently, K. Kavitha. She sat on hunger strike at Jantar Mantar in Delhi in March 2023 about the early passage of this women reservation bill. Women reservation bill पहले 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, 2008 में आया था राज्यसभा में. At that point of time, this bill provided for 33% of the reservation for women in Lok Sabha and state legislative assemblies. अब ये 33% रिजर्वेशन हुआ. हाउएवर, द ओवरव्यू ऑफ दिस बिल एंड इट्स टाइमलाइन वी विल गो थ्रू. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था 1996 में, एंड उस टाइम पे दिस बिल वाज रेफर्ड टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी. हाउएवर द बिल लैप्स्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन. उसके बाद 1998 में बिल को री इंट्रोड्यूस किया गया, फिर से ये फेल हो गई टू गार्नर द सपोर्ट. 1999 में एनडीए गवर्नमेंट री इंट्रोड्यूस द बिल इन द 13th लोकसभा, and it was introduced twice again in 2003
2004 में द यूपीए गवर्नमेंट इंक्लूडेड दिस वुमेन रिजर्वेशन बिल इन इट्स कॉमन मिनिमम प्रोग्राम and tabled it in this time in the Rajya Sabha to prevent it from lapsing again in 2008. Some recommendations from 1996 Geeta Mukherjee Committee were also included in this bill. This bill was passed in Rajya Sabha है ना 2010 में बट लैप्स्ड इन लोकसभा 2010 में ये फिर से लैप्स हो गई लोकसभा में हाउएवर अभी रिसेंटली ये बिल वापस आई है लोकसभा के डिबेट्स में एंड देर आर चांसेस दैट दिस बिल विल बी डिबेटेड एंड दिस बिल मे बी पास्ड ठीक है बट इसके पास होने में क्या चैलेंजेस आते हैं और क्यों चैलेंजेस आते हैं सबसे पहला heated debate and sexist taunts which have been heard and which have been encountered and this attitude has faced some of the quarters ठीक है there are challenges like this कि जब भी ऐसा बिल आता है तो actually if you see there is around 15% of the total presence of female MPs in the uh, central legislature ठीक है so that too is a point जहाँ पे the legislature is dominated already by men तो there is a tilt towards the male dominance और एक्चुअल मेल डोमिनेंस है तो फिर इस चीज का पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा देन कोटा विद इन द कोटा it was said by 1996 committee and it recommended a reservation for other backward class women within the one third reservation of women that is कि जितना रिजर्वेशन टोटल होगा 33% उसमें से भी रिजर्वेशन होगा किनका ओबीसी वुमेन का आफ्टर दैट yes there is a lack of political will as I said कि it's not preferred as we already saw कि 5 से 6 बार अभी तक ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया है एंड इवन ट्वाइस इन 2003 तो इट वाज नॉट पास्ड येट and the main reason was this lack of political will in such case you can see that Odisha's Biju Janata Dal and West Bengal's Trinamool Congress have reserved seats for women in election candidature और अगर आप यही देखो तो बिहार में भी there is around 50% of the seat reservation in local level governments local self governments so that is the whole scenario and these are the challenges for non-passage of this bill. What is the current status of this bill? So several states already like Gujarat and Himachal have elected a disproportionately low number of women legislators despite women making up a significant portion to the of the electorate. National average अगर आप women की देखो in state assemblies तो it's around 8% only which indicates a significant gender disparity and India has ranked around 144th when we talk about what global gender index ठीक है when we talk about women representation in parliament है ना so that is why we are lagging behind Bangladesh Pakistan and Nepal in this parameter so what is actually the importance of this women reservation bill it will set aside some stereotypes and some uh, if you see the discourse or if you see the taboos which are associated with the woman it will set them aside है ना it will also help in introducing the caste inclusivity and it will also help in introducing the gender quota plus woman representation this will also impact have an impact on panchayats ठीक है और पंचायत में अगर हमारे पास रिजर्वेशन इम्प्रोवाइज होता है तो सरपंच पति या सरपंच बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा ठीक है दीज क्लेशी टर्म्स विल नो लॉन्गर बी इन यूज ठीक है there will be women sarpanch who will unfurl the flag on the independence day and they will actually sign the documents and they will attend the gram sabha meetings ठीक है तो this is all about women reservation bill then talking about the national judicial data grid and supreme court information is just a click away as it joins the national judicial data grid so this data grid is part of an e-courts integrated mission mode project which was launched in 2015 this aims to track the judicial performance ठीक है across different courts in the country सबसे पहली चीज क्या है इसमें नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड तो हम बनाएंगे एक डेटाबेस कोर्ट्स का इस डेटाबेस में क्या होगा इस डेटाबेस में सारा नेटवर्क होगा
चाहे वो 18,735 डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, जितने भी नेशन वाइड कवरेज होगा वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। और उस डेटाबेस में पूरा नेटवर्क होगा लॉयर्स का, जजेस का, है ना, एडवोकेट्स का, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का, और उसके साथ साथ केसेस, कौन सा केस किस प्रोग्रेस पे हो और कितना प्रोग्रेस हुआ है, किसकी हेयरिंग कब है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। एंड देयर इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज सपोर्टिंग इट, दैट इज ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। रियल टाइम डेटा ट्रांसफर होगा, रियल टाइम पता भी चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट से तालुक कोर्ट को अगर कोई ऑर्डर जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट को अगर कोई ऑर्डर जा रहा है, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई ऑर्डर जा रहा है, तो वो सारी चीजें रियल टाइम बेसिस पे होंगी। This National Judicial Data Grid also provides the data sharing accessibility policy. This is in line with this policy, and this also offers an open application program interface to central and state governments to allow and designate their departments' IDs and access keys for streamlined access to this judicial data grid. और इससे क्या होगा, जितने भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे या जितने भी ऑफिशियल्स होंगे जिनको इस ग्रिड का एक्सेस चाहिए होगा, तो दे कैन जस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स एंड दे कैन जस्ट गेट इनटू दिस जुडिशियल डेटा ग्रिड बिकॉज दिस इज एन ओपन एपीआई, है ना। तो देर आर इंस्टीट्यूशनल लिटिगेशंस आल्सो। इनिशियली दिस एपीआई एक्सेस इज इंटेंडेड was intended for institutional litigants to evaluate and monitor their cases, and their plans to extend this access to non-institutional litigants in future is also there। ठीक है, तो the scope and the horizons of litigations will also increase by going to the NJDJ DG। Then talking about the significance of this project, तो ये सिग्निफिकेंस इसका ऐसा है कि 4 करोड़ से ज्यादा हमारे केसेस पेंडिंग है, तो दिस केस पेंडेंसी विल डिक्रीज। पॉलिसी डिसीजंस जल्दी लिए जाएंगे, कोर्ट से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ऑर्डर जाने में, उस ऑर्डर को बनाने में, उसको टाइप करने में, स्टीनोग्राफर को उसको वैलिडेट करने में बहुत सारा टाइम जाता था। दीज पॉलिसी डिसीजंस विल बी टेकन नाउ मोर फास्टर। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होगी, लैंड डिस्प्यूट ट्रैकिंग होगी अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। तो दिस प्रोजेक्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक आल्सो एंड कमेंडेड ऑन दिस प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और इस प्रोजेक्ट से देयर विल बी अ positive impact on the overall judicial system of India। Then again this bill, that is the registration of births and deaths bill 2023 जो आई है, इसके अगर की फीचर्स आप देखो तो दिस बिल टॉक्स अबाउट डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स, आधार डिटेल्स एंड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर ऑल ऑफ दिस। और उसमें हमारे पास होगा एक सेंटर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल जो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा बिकॉज दिस डेटा पर्टेन्स टू डेमोग्राफी। और जितना भी डेटा इस पोर्टल पे, जितनी भी रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे जाएंगी वो एनपीआर में काम आ जाएंगी, वो राशन कार्ड्स में काम आ जाएंगी, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में काम आ जाएंगी। और यही चीजें, और इसी पोर्टल से हमें बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि अभी यहाँ पे ये न्यूज़ बोल रही है कि दे फ्रॉम October 1st यू नीड टू रजिस्टर ऑल द बर्थ्स ऑनलाइन, और उनका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो है डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा। डन। देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या बोलती है? दिस टॉक्स अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन, दैट इज रेवोल्यूशन इन द फिशरी सेक्टर, financial investments which are required for developing self-reliance in this fishery sector. There is a substantial investment under the Atmanirbhar Bharat package which amounts to around 20,000 crores। ठीक है, then implementation of this scheme is there from 2020 to 2024-25, 5 साल के लिए स्कीम है। there will be increased and enhanced access to institutional credit। अब फार्मर्स या फिशरमैन जो फिश फार्मिंग करते हैं, चाहे वो इनलैंड फार्मिंग करते हो या फिर वो फिश कैच के लिए जाते हो, दे विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर किसान क्रेडिट लोन। ठीक है, और उसके बाद व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन फॉर फिशरी सेक्टर आर सागर परिक्रमा, पाक बे स्कीम, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ब्लू रेवोल्यूशन एंड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम।
At the last, there is this question about integrated farming system. How is it helpful to small and marginal farmers in India? अब ये जो क्वेश्चन है अबाउट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग। दिस इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज सिंपल कॉन्सेप्ट कि एक फार्मर जो है, जो अभी तक बस एक क्रॉप पे भरोसा करके चल रहा था, फॉर एग्जांपल वो वीट उगा रहा है, एंड ही इज अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, ही इज वेरी स्मॉल फार्मर। और अब ये क्या कर रहा है, ये वीट की खेती मान लो साल में 2 बार कर रहा है। ठीक है, और एक बार ये सरसों उगा रहा है। नाउ व्हाट वी डू इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज दैट, इस फार्मर को नॉट ओनली वीट बट ऑल्सो सम काउस एंड बफेलोज, ठीक है, ये भी दिए जाते हैं। एंड देर इज अ यूनिट, अ स्मॉल यूनिट ऑफ फिशरी ऑल्सो। ठीक है, जो वहां पे ये पॉन्ड फिश ले लो आप या बायोफ्लॉक फिशिंग ले लो आप, ये उसमें स्टार्ट कर देता है इसी लैंड के अंदर ही। ठीक है, थोड़ा सा जमीन अपना डाइवर्ट करके, थोड़ा सा जो उसका घास निकलेगा वो इन मतलब जो इसके लाइव स्टॉक होगा उनको खिलाएगा। साथ में जो ये फिशरी का डेवलपमेंट करेगा, साथ में जो ये मशरूम उगाएगा। तो देर आर अराउंड 3 to 4 or 5 प्रोडक्ट्स जो एक फार्मर यहाँ से अपनी लैंड से निकालता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के थ्रू। कैसे वो हर एक यूनिट जो है अपने इसी लैंड पे बनाता है, और साथ में अपनी रेवेन्यू को, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करता है। और ये चीज जो है सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है किनकी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, बिकॉज दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन। अगर इनका क्रॉप खराब हो गया तो इनके पास कुछ नहीं बचता है। और तो अगर ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आएंगे तो इनके पास और भी बहुत सारी चीजें बचेंगी, जिससे ये अपना जो है रोजगार चला सकते हैं। Now, when we answer this question, you need to define this concept and an approach to this integrated farming, क्योंकि आपको ये समझाना है। और इस क्वेश्चन में अगर 10 मार्क्स है तो 5 मार्क्स आपके इस पार्ट के हैं। तो इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझाना है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग का इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, कैसे ये हेल्प करेगी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की। ठीक है, और व्हाट इज द गवर्नमेंट पुश फॉर डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022, उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कितना रोल है, एंड हाउ कैन वी लिंक this integrated farming system with the traditional practices. You should also keep in mind that India has to adopt and India needs to adopt this well designed integrated farming system in order to achieve the target of doubling the farmer income, which is now postponed, है ना? So I wish you all the best for your preparation, for your day ahead. Good luck, have a nice day ahead. Thank you for joining me here. जय हिंद, जय भारत।